Okay, so let us begin with our topic. Those who have done the homework, very good for all of you. Very good. Keep it up and complete your homework. It will help you out only. Okay. Now, in the last lecture, we have learned till enzymes. Okay. We have seen about the antibiotics. We have seen the use of microbes in making vitamins, in making organic acids, in making antibiotics, in making beverages, enzymes, etc. Okay. Now we are going to learn about one more enzyme, that is the gibberellin production. Yes, as we have written about the enzyme, you must have heard there is one more column in your textbook. Let me show you that first. This particular part where there is written as gibberellin production. However you pronounce it, you can pronounce it as gibberellin also or whatever, gibberellin also. अच्छा, gibberellin कहाँ से मिलता है? It is a fungus. Okay, it was been found out by a Japanese scientist, and the name of the scientists are Yabuta and Sumiki. They have found out this fungus, Gibberelli fujikuroi, from the infected rice का सीडलिंग से उन्होंने ये आइसोलेट किया था. Now they found out that ये जो गिबरेलिन है, it is nothing but a plant growth hormone. ठीक है, it's a plant growth hormone which are been produced by the higher plants also and mostly by the fungi. ये गिबरेलिन का काम क्या है? Yes, it is a fungus. So where it has been used? It is used in many things. तो देखो क्या क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है. Gibberellin is a fungus. It is used in inducing the parthenocarping in apple. Parthenocarpy मतलब seedless apple or seedless pear. Yes, it has also been used for breaking the dormancy of seed. Again, it has also been used in inducing the flowering in long day plants. It is also used for making the large size of grapefruit. So in the board exam, the question can be, again this will be a homework for you, uses of gibberellin, or write a short note on gibberellin. So what you will write on the first point, the gibberellin is a fungus. Yes, it's a fungus. What is the name of the fungus? Gibberella fujikuroi. Okay. The next point you're going to write down is that it is a growth hormone. What it is? It's a growth hormone. It is produced by both higher plants as well as fungi, but we mostly use this fungi for the production of gibberellin. Next heading will be uses of gibberellins. So uses of gibberellin number 1, first point आएगा. It helps in inducing parthenocarpy. Parthenocarpy का मतलब होता है बिना सीड वाला फ्रूट्स बनाना. बिना सीड का क्यों बनेगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए. So it helps in inducing the parthenocarpy in apple, pear, etc. This is the first point. Second point of gibberellin is it can break the seed ka dormancy. Third point, it can induce flowering in LDP, long day plant. Fourth importance of gibberellin is we can make a large size of grapefruit. Is that very clear to all of you? समझ में आ गया सबको? हाँ. Now this extra information का जो box होता है ना बेटा, this is very very important for all of you to clear your 1 mark or the MCQ. ठीक है. तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में आपको किसके बारे में दिया है? एक एंजाइम का नाम दिया है. व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? ये भी आपको लिखना है. स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम. किससे बनता है? एक बैक्टीरिया से बनता है. कौन से बैक्टीरिया से बनता है? स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज बैक्टीरिया से बनता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम जो हम ये बैक्टीरिया से बनाते हैं? ये एंजाइम का काम क्या है? सो इट इज अ क्लॉट बस्टर. क्लॉट बस्टर मतलब आप लोगों ने आजकल सुना होगा, ये बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है कि हार्ट में 5 क्लॉट है, 2 क्लॉट है, 10 क्लॉट है.
तो ये जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है, yes, in any of the blood vessels, it can be cleared out by this streptokinase enzyme. Very clear? So therefore it is called as a clot buster for clearing the blood clots in the blood vessels of a patient, which may cause the heart attack. ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जो हार्ट के पास जो ब्लड लेकर जाता है उसका नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन. अगर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉक्स आ गया, यस, ब्लॉक्स किसके वजह से आता है, आइदर ड्यू टू द blood, it can be either a blood clot or it can be a fat clot. Yes, so if it is a blood clot, so it can be treated with this streptokinase enzyme, which we can produce from a streptococcus species. Is that very clear? First one. Second one which has been given is about the statins. Statins are produced from yeast. कौन सा yeast? Again there are different species of yeast. यस, मैंने आपको कल ही बताया था, एक ब्रूवर्स ईस्ट बताया, एक बेकर्स ईस्ट बताया. अब ये एक अलग टाइप का ईस्ट है, हाँ, जो कमर्शियली स्केल में हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, कमर्शियल स्केल पे. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, मोनास्कस परप्यूल्यूस. ठीक है. नाउ व्हाट द statins आर बीन यूज्ड फॉर, it is a blood cholesterol lowering agent. मतलब ऐसे पेशेंट जिसका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल एकदम हाई हो गया है, यस, तो उस पेशेंट्स को जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप स्टैटिन्स दे सकते हो. पर आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिन्स बना कैसा है, तो ये बनता किससे है, ईस्ट से बना है. Yes, so it is a blood cholesterol lowering agent. So it can be asked for MCQ. Name the microbes used for blood cholesterol lowering agent. So you can write down the name of the yeast, or you can write down statins which are produced by yeast. ठीक है, very clear. So they are again synthesized. This enzyme is again responsible for the synthesis of cholesterol. Very clear to all of you. So please note down this part also. Okay. Now the next topic which we are going to learn is the microbes which are being used in the sewage treatment. So again, let us go back to our PPT once again. So we have learned about the organic acid. We have learned about the enzymes. I've told you about the bioactive molecules. I've told you about the statins. Okay. Yes. And there is one more which I have given on in your slide in the PPT, is the cyclosporin. Again, it has been produced by the fungus. It is an immunosuppressive agent during organ transplantation. Yes, जब भी हमें organ transplant करना होता है, उस वक्त हमारा immunity एकदम suppress रहना चाहिए, क्योंकि अगर अपना immunity एकदम strong रहेगा उस वक्त, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा. जो नया ऑर्गन, बाहर का ऑर्गन हम डाल रहे हैं अंदर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बॉडी. तो उस वक्त हमें वो पेशेंट को जिसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट दिया जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फंगस, एंड द नेम ऑफ दैट इज द व्हाट, साइक्लोस्पोरिन. statins we have just now discussed. Now the next topic which we are going to discuss is about the microbes in the sewage treatment. What is sewage? It's a municipal waste water containing large human excreta. Yes, तो sewage pipes होते हैं, आपके घर के जो टॉयलेट्स वगैरह के पाइप है, they are nothing but the sewage. Have you ever thought कि सीवेज जाता कहाँ पे, या फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? तो जो सीवेज है विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसमें, इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है और प्लस पैथोजेंस भी होते हैं. तो हम माइक्रोब्स का, हम बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि ये जो गंदा पानी है, हाँ, जो एक्सक्रीटा वाला पानी है, उसको हम ट्रीट कर सके. ठीक है. So, sewage is the municipal waste water containing the large human excreta. It contains the organic waste and the pathogens. ठीक है. It also contains the household waste. ठीक है. Household waste भी रहते हैं. Pathogens में कौन कौन से waste होते हैं उसमें?
कोई भी एक्सक्रीटा के अंदर बैक्टीरिया दिख रहेगा, वायरस रहेगा, प्रोटोजोन्स रहेगा, नेमाटोड्स रहेंगे या कोई भी फंगाइज रहेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सीवेज के अंदर सिर्फ घर का वेस्ट नहीं आता है, इसके अंदर हॉस्पिटल का वेस्ट भी आता है। मतलब जो भी हॉस्पिटल का वेस्ट है, जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई गायनेक डॉक्टर है तो वहां पे तो बहुत ज्यादा वेस्ट मिलता है, जैसे कि व्हाट टू से ऑर्गेनिक वेस्ट वहां पे क्या है, जैसे कोई डेथ हो गया है वो है, अगर कोई क्लेम करने वाला नहीं है, प्री नेटल डेथ है उसका भी ये रहता है। नेक्स्ट प्लेसेंटा वगैरह है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ ऑल दिस थिंग्स आर बीन देयर। सो हॉस्पिटल में के भी वेस्ट सीवेज वेस्ट में ही आते हैं। इवन स्लॉटर हाउस वेस्ट मतलब जहाँ पे, स्लॉटर हाउस का मतलब मालूम है ना बेटा, जहाँ पे वो बकरी वगैरह काटते हैं, so that also comes in this only। even अगर तबेला वगैरह है तो एनिमल का काउ डंक वगैरह also comes over here। even the discharge from industry waste also like toxins वगैरह, ठीक है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट, ये सारा सब हम सीवेज के कैटेगरी में डालते हैं। मतलब सीवेज इज नथिंग बट ऑल वेस्ट। इट कैन बी फ्रॉम हाउस होल्ड, इट कैन बी फ्रॉम बिल्डिंग्स, हाँ, इट कैन बी फ्रॉम हॉस्पिटल्स, स्लॉटर हाउस, इंडस्ट्रीज, एनी फार्मास्यूटिकल वेस्ट, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये सब हम किस में कैटेगराइज करते हैं, इनटू द सीवेज। Now, before discharging the sewage into a natural water bodies, sewage is made less polluted by treating it with STPs. What is this STPs? This is a sewage treatment plants. So let us learn that. So you can see that the photo of a sewage treatment plant, as a sewage treatment plant hota hai. Now, सीवेज के अंदर लेट अस फर्स्ट लर्न कि उसमें होता क्या क्या चीज है। सो बिफोर दैट अगेन आई जस्ट वांटेड टू शिफ्ट टू द टेक्स्ट बुक। सो द सीवेज कंटेन्स, कॉम्पोजिशन ऑफ सीवेज पे जाते हैं, यस। सो सीवेज कंटेन 99.5 और 99.9% वाटर है, 0.5% इनऑर्गेनिक and organic material suspended and soluble in it. What are the content of it? The water, it is the waste discharge into water from different industry like textile, chemical, dairy, canning, brewing। ये सारे इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है वो उसके अंदर होता है, सीवेज के अंदर होता है, ठीक है। नाउ माइक्रोब्स विच आर यूज्ड इन सीवेज, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सीवेज। जैसे अभी मैंने आपको जस्ट नाउ बताया, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। जो रॉ सीवेज है, इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पर ml। यस, इट इंक्लूड्स coliforms, fecal, streptococca, anaerobic spore forming bacillus and other originating in the intestinal tract of the human। Before waste product is made available for human use, before waste water is made available for human use, उसको पहले क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है प्रॉपरली, टू रिमूव ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड पैथोजन एज वेल। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं या प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो गंदा पानी है उसको पहले ट्रीट किया जाता है और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। सो देयर आर डिफरेंट things as primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment। So let us once again go back to the PPT now। Primary treatment of sewage water। तो इसमें क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, it involves a physical removal of sewage particles either through filtration or by sedimentation। ठीक है, तो या तो फिल्ट्रेशन से या तो फिर सेडिमेंटेशन से जो भी फिजिकली हम निकाल सकते हैं सीवेज पार्टिकल्स, वो निकाला जाता है। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। फ्लोटिंग डेब्रीज मतलब जो भी डेड है, जो फ्लोट कर रहे हैं, उसको हम फिल्ट्रेशन से निकाल सकते हैं। द ग्रिट मतलब soil and small pebbles are removed by again sedimentation।
all solids that settle from primary sludge and the supernatant form the effluent. Now fourth point is very important for you all to understand. All solid that settle, अभी हमने सेडिमेंटेशन किया, फिल्ट्रेशन किया, सेडिमेंटेशन किया, ग्रिड्स को रिमूव कर दिया हमने, सारे सॉइल या स्मॉल पेबल्स को रिमूव कर दिया. अब रिमूव करने के बाद अब हमें क्या मिलेगा? द सॉलिड, ऑल सॉलिड दैट सेटल्स, जो भी सॉलिड सेटल हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? इट विल फॉर्म द प्राइमरी स्लज. और ऊपर जो है पानी, ऊपर जो पानी है, yes, that is called as a supernatant, which is called forms the effluents. The effluent of primary settling tank is taken for secondary treatment. I hope it has been understood for all of you. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे आपने एक बीकर में मट्टी घोल के रखा है, ठीक है, for all to understand. मट्टी का पानी घोल के रखा है, आप थोड़ी देर उसको सेटल होने दीजिए, सेडिमेंट होने दीजिए, तो सारा मट्टी नीचे बैठ जाएगा और ऊपर पानी दिखेगा हमें. तो वो जो ऊपर वाला पानी है उसको हम अब क्या नाम देंगे? एफ्लुएंट देंगे. और जो नीचे सेटल्ड हुआ है सॉलिड पार्ट उसको हम क्या नाम देंगे? प्राइमरी स्लज. तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए? हम एफ्लुएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इट इज अ सुपरनेटेंट. एफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करेंगे. चलो ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? अब ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, it is passed into large aeration tank. Now this is also very important. कहाँ पे हम उसको डाल रहे हैं? एरेशन टैंक में डाल रहे हैं. एरेशन टैंक मतलब जिसमें एयर, एरेशन टैंक ऐसा टैंक होता है बेटा जिसमें हमेशा शेकर्स होते हैं, मतलब वो हमेशा हिलते रहेगा तो उसमें एयर प्रॉपर जाते रहेगा. Now this allows vigorous growth of useful aerobic microbes. समझा आपको मैंने? हमने क्यों इसको एरेशन टैंक में डाला? एरेशन टैंक्स आर नथिंग बट द शेकर्स. ठीक है, हम वो बार बार हिलाते रहेंगे, मीन्स उसको हमेशा चर्न करते रहेंगे एफ्लुएंट को. तो चर्न करने से क्या होगा? उसमें एरेशन होगा, उसमें एयर जाएगा और एयर जाने से उसमें एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ होगा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, जो ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन करेंगे. अब ये जो माइक्रोब्स है, दे विल कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इन्फ्लुएंट. हाँ, हमने एरेशन क्यों किया? ताकि एरोबिक माइक्रोब्स आ गए. अच्छा, अब एरोबिक माइक्रोब्स आ गए तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया. क्या काम शुरू कर दिया? वो एफ्लुएंट में, वो पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं. इससे क्या होता है? This significantly reduces the BOD of the effluent. What is BOD? Biochemical oxygen demand. ठीक है? So biochemical oxygen demand of effluent is reduced. Once the BOD is reduced, the effluent is then passed into the settling tank. अब इसको वापस हम settling tank में डालेंगे, where the bacterial flocks are allowed to sediment. हाँ, अभी हमने ये माइक्रोब्स ने अपना काम किया. माइक्रोब्स ने काम करने के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन होने के वजह से बीओडी कम हो गया. बीओडी कम होने के बाद हमने इसको सेटलिंग टैंक में डाला, जिससे कि जितने भी बैक्टीरियाज थे, फ्लॉक्स मतलब ग्रुप, वेयर बैक्टीरिया का पूरा जो ग्रुप है, यस, पूरा जो झुंड है, दे आर अलाउड टू सेडिमेंट. नाउ दिस स्लज, हमने पहले वाला क्या पढ़ा था? प्राइमरी स्लज. अब ये क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है, अब द स्लज इज पम्प्ड इनटू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. अब ये जो स्लज है इसको हम कहाँ डालेंगे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे. एनारोबिक, अब एनारोबिक में डाल रहे हैं मतलब वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया काम करेगा. Now in anaerobic sludge digester, anaerobic bacteria will digest the bacteria and fungi in the sludge. ठीक है, during this bacteria produces the biogas. So the effluent from the secondary treatment plant is released into the natural bodies like rivers and streams. Very clear to all of you? थोड़ा about BOD,
BOD is the amount of oxygen required to oxidize the total organic matter by the bacteria in 1 liter of water. That means BOD measures the organic matter present in the water. Greater the BOD of waste water, more is its polluting potential. Very clear to all of you beta. just एक बार read करो. किसी को नहीं कुछ समझा है तो प्लीज मेरे को BOD के बारे में पूछो. आपके टेक्स्ट बुक में हाँ यहाँ से ये जो पार्ट है 5th पॉइंट से, दिस कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज टर्शियरी ट्रीटमेंट. ये तो मैंने आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है. यस तो मैं वापस एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पर आपके टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में दिया है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप दिया है. तो पहले आप सिंपल वे में समझ जाओ, फिर आप कॉम्प्लिकेटेड तो आसानी से समझ जाओगे. क्या करना है हमें, हमने ये जो सीवेज है, यस क्या किया हमने, पहले उसका फिजिकल ट्रीटमेंट किया. फिजिकल ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, जो भी उसके अंदर फ्लोटिंग डेब्रीज थी वो हमने या तो सेडिमेंटेशन से या तो फिल्ट्रेशन से निकाल दिया. ठीक है, उसमें जो ग्रिड्स थे मतलब जो सॉइल थे या छोटे छोटे पेबल्स थे वो भी हमने निकाल दिया सेडिमेंटेशन से. इसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं. अब आता है नंबर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का. तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो सीवेज है, ये जो सीवेज है हम उसको थोड़ी देर सेटल होने के लिए रखेंगे. तो सेटल होने से क्या होगा, सारा सॉलिड पार्ट जो नीचे सेटल हो जाएगा उसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी स्लज. और ऊपर का जो पानी है, yes which is again rich in organic material, ये पानी को हम सुपरनेटेंट बोल सकते हैं या फिर एफ्लुएंट भी बोल सकते हैं. अब ये एफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होने वाला है बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होने वाला है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. क्यों बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे बैक्टीरिया का इस्तेमाल करने वाले हैं इसीलिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, ये जो ऊपर का पानी है, उसको हम किस में डालेंगे, शेकर्स में डालेंगे. उसको विगरसली शेक किया जाएगा. हाँ, शेकिंग से क्या होगा, उसमें एरेशन होगा और एरेशन से उसमें अपने आप क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरियाज, एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो हो जाएंगे. यस अच्छा, ये माइक्रोब्स जो ग्रो हुए हैं वो फटाफट अपना काम शुरू करेंगे. जो भी वो एफ्लुएंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उसको फटाफट कंज्यूम करेंगे. ये लोग जैसे ही कंज्यूम करने लगेंगे वैसे ही बीओडी कम हो जाएगा. यस अब बीओडी कम हुआ है, यस तो क्या होगा, दिस एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक. ठीक है, अब यहाँ से आता है आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया है 4th पॉइंट से, यू कैन कैटेगराइज एज अ टर्शियरी ट्रीटमेंट. यहाँ तक आपके बुक में दिस इज लेबल्ड एज अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट. 4th पॉइंट ऑफ माय पीपीटी इज बीन नाउ कंसिडर दिस एज अ टर्शियरी ट्रीटमेंट. अभी टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ये जो सीवेज है जिसका बीओडी ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है, हम उसको वापस सेटलिंग टैंक में डालेंगे. अब सेटलिंग टैंक में क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया का झुंड है, जो भी बैक्टीरिया का फ्लॉक्स है वो सेडिमेंट हो जाएंगे और this sediment is now called as an activated sludge. अब इस sludge को हम किधर डालेंगे, it is pumped into the anaerobic sludge digester. anaerobic sludge digester में यहाँ पे anaerobic बैक्टीरिया काम करेंगे उसके ऊपर. हाँ, and they will digest the bacteria and fungi in the sludge. जो भी बैक्टीरिया और फंगाई थे उसको वो डाइजेस्ट कर देंगे. During this bacteria produces biogas also. बायोगैस भी बनता है. Yes, and this effluent from secondary treatment, or I can say as after tertiary treatment, it is released into the natural bodies. Very clear to all of you beta. Now I just wanted to show you the textbook for you all to understand. When you read तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम ने क्या बताया. सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ना आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में दिया है बेटा. स्क्रीनिंग किया जाता है. स्क्रीनिंग मतलब चेक किया जाता है कि कौन कौन से फ्लोटिंग पार्टिकल्स है, कौन कौन से सॉलिड पार्टिकल्स है, उसको निकाला जाता है. ग्रिड चेम्बर मतलब स्टोन्स है या ब्रिक्स है, उसको सब निकाला जा रहा है. दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रिड चेम्बर्स. हाँ, उसको फिल्टर किया जाएगा.
फिर मैंने आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट में बताया, यस, सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये सारी चीजें, प्राइमरी स्लज बनता है, सुपरनेटेंट दैट इज एफ्लुएंट बनेगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मैंने आपको क्या बताया, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस फ्लॉक्स, एरोबिक बैक्टीरियाज के बारे में बताया मैंने बताया बीओडी कम होगा। फिर टर्शरी में settling tank, I have explained you about the activated sludge, I have explained you about the anaerobic sludge digester also. I have told you that the biogas has been formed. What does the biogas consist of? It consists of methane, hydrogen, carbon dioxide are produced. So in one word I have told you a biogas has been formed. Very clear? Then this effluent from the plant after chlorination, yes, उसमें chlorination किया भी जाता है, chlorine डाला जाता है और फिर उसको natural water bodies में डाला जाता है। Chlorination क्यों किया जाता है? It will again kill whatever remaining pathogens या bacterias are there. और फिर बाद में digestive sludge को dispose कर दिया जाता है। ठीक है? Now everything has been explained in the form of a flow table. So again it's a homework for you all to draw this flow table. ठीक है, ये फ्लो टेबल आप सबको ड्रॉ करना है। इज इट वेरी क्लियर बेटा? सबको समझ में आया है? यस और नो, कोई बोलते भी नहीं है, सब सो गए हैं क्या? यस मैम। यस मैम। अच्छा, now the next topic which we are going to learn is microbes in energy production. Yes, energy generation. अभी energy means हम लाइट चालू कर सकते हैं, हम गैस ऑन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बायोगैस प्रोडक्शन, है ना? आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में बायोगैस प्लांट। तो हम इसके कारण, बायोगैस के कारण वी कैन डू मेनी थिंग्स, है ना? वी कैन प्रोड्यूस, वी कैन जनरेट एनर्जी, दिस एनर्जीज कैन बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग द स्ट्रीट लाइट्स, यस, इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, यस, सो लाइट और इसके लिए बहुत सारे कामों के लिए हम बायोगैस यूज कर सकते हैं। तो लेट अस लर्न कि हाउ दिस बायोगैस इज बीन फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरियाज। ठीक है, तो अगेन लेट मी गो टू दिस थिंग। So you can see in the photo a biogas plant. So biogas क्या है? It is a mixture of gases which contains what? It contains methane, it contains carbon dioxide, it contains hydrogen gases, which are produced by microbial activities and which are used as a fuel. क्योंकि हम उसको fuel के जैसे use करते, therefore it is called as, it is used for energy generation. Have you all seen the photo of a biogas plant? चलो let us learn कि कैसा होता है इसका structure और वो कैसे बनता है, क्या होता है। Now the structure of a biogas plant. It consists of a concrete tank in which bio waste are collected and slurry of dung is fed. ठीक है, सारा घर का जितना भी कचरा है, हाँ, घर में वेजिटेबल का, फ्रूट्स का, whatever कचरा is been there, they all have been dumped in this concrete tank. और उसके साथ क्या डाला जाता है? slurry of dung. हाँ, slurry का मतलब क्या होता है? काउ डंक में पानी मिक्स करके डाला जाता है। The floating cover is placed over the slurry, which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial. Which microbial? These are called as the methanogens activity. Yes, methanogens are the bacteria which are making this biogas. Now, biogas has a gas outlet. Yes, it has a gas outlet which is connected to a pipe to supply biogas to the house. Now, used slurry is removed through another outlet and may be used as a fertilizer. जो slurry का काम हो चुका है, it is again removed, ठीक है, and again it can be used as a fertilizer. Biogas is used for cooking, lighting, etc. About biogas, you can only tell me because you have learned about biogas right from your lower classes. Now, in the PPT, the reactions was not been there, so I have taken the help of your textbook now. As I've explained you about all these things, it is having a concrete brick. आप वो सब मैंने आपको explain कर दिया. Now let us learn कि कैसे किया होता है. So it takes place in 3 steps.
What are the 3 steps? पहले hydrolysis या फिर solubilization. Second step is acidogenesis and third step is methanogenesis. Again, this is a homework for you all to write down the steps of biogas production. ठीक है, ये आपको homework भी है. So let us learn that. So hydrolysis में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है. hydrolysis में इसमें क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल है जैसे कि अपना कैटल डंक इज मिक्स्ड विथ वाटर टू मेक अ स्लरी. अभी मैंने आपको बताया स्लरी मतलब पानी के जैसा. यस, तो जो भी काउ डंक वगैरह है उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है टू मेक अ स्लरी और उसको डाइजेस्टर में डाला जाता है. अच्छा, अब यहाँ पे एनेरोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया कौन सा है वो? क्लोस्ट्रीडियम या फिर स्यूडोमोनास. ये क्या करेंगे बैक्टीरिया? ये हाइड्रोलाइज करेंगे. क्या हाइड्रोलाइज करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को इनटू सिंपल शुगर, प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड एंड लिपिड इनटू द फैटी एसिड. सो फर्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे बेटा? एनेरोबिक डाइजेशन के 3 प्रोसेस आपको लिखने हैं. हेडिंग लिखोगे हाइड्रोलाइसिस. क्या लिखोगे? एनेरोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया. यस, नाम लिखो उसका क्लोस्ट्रीडियम स्यूडोमोनास. व्हाट दे आर गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज carbohydrate into sugar, protein into amino acid and lipid into the fatty acid. Very clear first step. Second step में क्या होगा? एसिडोजेनेसिस. नाम से ही पता चल रहा है. अगेन यहाँ पे भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं एंड ऑब्लिगेट एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट the simple organic material into acids like formic acid, acetic acid or H2 and carbon dioxide. Very clear. क्या किया यहाँ पे? यहाँ पे the bacterias, acidogenic bacterias are going to convert the simple substance. Simple substance हमें कहाँ से मिला? हाइड्रोलिसिस से मिला. तो simple substance को वो लोग convert करते हैं either into formic acid. एसिड का मतलब यू नो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड. जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन. तो आपको आंसर मिल गया. सो दिस एसिड्स आर बीन फॉर्म्ड. नेक्स्ट स्टेप इज मेथानोजेनेसिस. हाँ, अब लास्ट स्टेज में क्या होगा? जो मेथानोजेनिक बैक्टीरिया है, ये नाम आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कौन से मेथानोजेनिक बैक्टीरियाज है? मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोकोकस. Now they are going to convert the acetate, hydrogen and carbon dioxide into the methane, carbon dioxide and water. Yes, you can see the reaction. Acetic acid converted into methane, formic acid converted into methane. Yes, and again carbon dioxide and hydrogens are being converted into methane. And therefore methano मतलब methane का genesis मतलब formation. पर आपको यहाँ पे नाम क्या याद रखना है? बैक्टीरिया का नाम याद रखना जरूरी है. समझ में आ गया? यस. तो बायोगैस प्रोडक्शन में 3 स्टेप. हाइड्रोलाइसिस by the Clostridium pseudomonas, in which complex is broken down into simple. Acidogenesis, formation of acids like formic acid, acetic acid. ठीक है, by the acidogenic bacteria. Methanogenesis means formation of methane. Conversion of acids into methane is called as methanogenesis. It is done with the help of bacteria. What are the name of the bacteria? Methanobacteria, Methanococcus. Very clear. And benefits to you know. It is used for lighting, cooking. Yes. Burning blue flames without smoke. Eco-friendly है. Yes. स्लज जो है वो फर्टिलाइजर के काम में आता है. तो बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके ऑफ दिस बायोगैस. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इज द माइक्रोब्स का रोल एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. यस, सो हाउ दे आर बीन यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल. नाउ बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या है?
is controlling plant diseases and pest using biological method. जो भी प्लांट को डिजीज होते हैं या फिर पेस्ट का इन्फेक्शन होता है बाय बायोलॉजिकल मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ लेडी बर्ड, हाँ, आर यूज्ड टू कंट्रोल एफिड्स. ये देखो छोटे छोटे एफिड्स है, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं एफिड्स है. एंड ड्रैगन फ्लाइज फॉर मॉस्किटोज. ठीक है, यस. सो ऐसे हम कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू कंट्रोल द डिफरेंट पेस्ट और द disease. So let us talk about which are the microbes which are used in the biocontrol. तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, that is a Bacillus thuringiensis, जिसको abbreviate किया जाता है BT. Yes, they are being used to control caterpillars. Dried spores are mixed with water, yes, and sprayed on the plant. These are eaten by the insects larvae. In the gut of the larvae, the toxin release and kills the larvae. Is that very clear? So BT is Bacillus thuringiensis, is used to get rid of butterflies, caterpillars. ठीक है? Very clear? Next, मैं आपको पहले यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर आपको टेक्स्ट बुक पे लेकर जाऊंगी. Trichoderma is a fungus. It's a free living fungus which is used to control several plant pathogens. Then what is next? Baculoviruses are pathogens that attack the insects and other arthropods. The majority of these baculoviruses belongs to the genus this. These viruses are species specific. They are having narrow spectrum anti-insecticidal application. They have no negative impacts on plants, mammals, birds and fish, and therefore it is very useful in integrated pest management program. Yes, some microbes are being used in enriching the soil nutrients also. Microbes are helping in enriching the soil nutrients and called as the biofertilizers. जैसे कि rhizobium bacteria are found in the root nodules of leguminous plant. They fix the atmospheric nitrogen into nitrates and therefore it is used for plant as a nutrient. Similarly, Azotobacter and Azospirillum bacteria fix the atmospheric nitrogen and increases the nitrogen content of the soil. I will be teaching you about the mycorrhiza, but I just wanted to show you this. Mycorrhiza is a fungal symbiotic associated with roots of many plants. It provides phosphorus to the plant from the soil. It makes the plant resistant to root-borne pathogens and increases the tolerance to salinity and drought. I hope the things are clear to all of you, beta. Again, I will go to the textbook for you all to explain. So these are the names which are been given in your textbook for biocontrol methods. Yes. So एक अच्छा सा नाम दिया है कि क्या कौन कौन से बैक्टीरिया और कौन कौन से उसके होस्ट है किसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. इतने सारे फंगाइज के नाम है जो इतने सारे होस्ट को कंट्रोल करते हैं, पैथोजेंस, वायरसेस. ठीक है. सो अगेन दिस टेबल इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल टू लर्न. आपको ये सारे बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोन्स के साइंटिफिक नाम याद करने ही पड़ेंगे. देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दैट. अच्छा, अब ये यूज करने का फायदा क्या है कि हम टॉक्सिन से बच सकते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर से बच सकते हैं. मतलब अगर आप केमिकल स्प्रे करोगे तो केमिकल स्प्रे करने से क्या होता है कि वो स्प्रे जब हम खाएंगे तो हमारे भी वो इकोसिस्टम में वो घूमेगा, वो एनर्जी फ्लो होगा उसका. तो उससे रोकने के लिए टू अवॉइड केमिकल, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स, दिस बायो कंट्रोल इज अ वेरी गुड मेथड टू कंट्रोल ऑल दिस पेस्ट. समझ में आ गया? सो आपको यहाँ पे दिया है, देखो जो अभी मैंने आपको बीटा थुरिनजेनेसिस के बारे में बताया, जो मैंने आपको ट्राइकोडर्मा के बारे में बताया. ठीक है.
Yes, again the list has been given about the host, pathogens and host. Next topic which you have to learn is the bioherbicides. अभी देखो weeds क्या होते हैं? They are the unwanted plants जो ग्रो करते हैं इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स और पॉन्ड्स और लेक्स. तो हम वीड्स को निकालने के लिए भी, हाँ वीड्स को निकालने के लिए भी, क्योंकि वीड्स अगर ग्रो करेगा सॉइल में फॉर एग्जांपल, तो वो भी सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेगा और हमारा जो मेन प्लांट है वो वीक हो जाएगा और ये वीड से सारा न्यूट्रिएंट्स लेने लगेगा. प्लस वो वाटर लेगा, स्पेस लेगा, मिनरल लेगा, लाइट लेगा, एयर लेगा, सब चीज यूज करेगा वो. तो हमें ये वीड्स को निकालना है. तो हम वीड्स को कैसे निकाल सकते हैं? अगेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. तो अगेन अ लिस्ट इज बीन गिवन. So you can see the pathogenic fungi as microherbicides. Yes, sorry. So we can use many microbes which are used as the herbicides. Okay. So again a list has been given. Which pathogens are being used to control which type of weeds? Milkweeds, water hyacinth. Huh? Again a list has been given. You will be again writing this list in detail. Insects भी हम use करते हैं. Insects भी use करते हैं. We use bacteria also and we use fungus also. So तीन category दी गई है आपको, fungus, bacteria and the insects. Very clear? Now, role of microbes as a biofertilizer. Biofertilizer में just now I've shown you the photo. So NPK is the main nutrient of a plant. Nitrogen, phosphorus and potassium. Okay. So these are called as a biofertilizers. Now biofertilizer के लिए again you have learned from your lower classes about the nitrogen fixing bacteria. जो भी leguminous plant रहते हैं उनके root nodules में हाँ nitrogen fixing microbes रहते हैं which fixes the nitrogen और वो लोग symbiotic association में रहते हैं. हाँ जिसमें से सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जब दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो राइजोबियम, एनेबेना, फ्रैंकिया, ये सब सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. मतलब वो लोग रूट नोड्यूल बनाएंगे, हाँ वो नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देंगे और प्लांट से उनको क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा. और कुछ नॉन सिम्बायोटिक भी होते हैं, मतलब फ्री लिविंग वाले भी होते हैं, जैसे कि एजिटोबैक्टर वगैरह हो गए. ठीक है. They are just doing what? They are fixing the nitrogen and giving to the plants. Next, ये तो हो गया नाइट्रोजन का प्रॉब्लम सॉल्व. अभी N का सॉल्व हो गया. अभी P का. फॉस्फेट के लिए भी बायोफर्टिलाइजर्स मिलते हैं हमें मार्केट में. ये बैक्टीरियाज है जो फिक्स करते हैं फॉस्फेट को. तो you can see the examples of the bacteria which fixes the phosphate. Yes, very clear. Now compost making biofertilizers. Compost making क्या है? Composting is a natural process that turns organic material into a dark rich substance called as a compost or the humus. है ना? जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो बहुत दिन तक अगर मिट्टी में रहेगा, यस, तो क्या हो जाएगा? वो एक डार्क कलर का सब्सटेंस बन जाएगा जिसे हम कंपोस्ट बोलते हैं. आपने वर्मी कंपोस्ट सुना होगा जो अर्थवर्म से किया जाता है. देन अगेन कंपोस्टिंग भी अपने आप नहीं होता है. कंपोस्टिंग इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ, टू ब्रेक द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कंपोस्ट. यस, कौन से बैक्टीरिया, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है? देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, हाँ, एक्टिनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोएंस एंड द रोटिफोर्स. अगेन साइनोबैक्टीरिया, मेनी साइनोबैक्टीरियाज आर एक्वाटिक एंड टेरेस. साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गेज. अगेन ये ब्लू ग्रीन एल्गेस क्या करते हैं? दे आर फिक्सिंग द नाइट्रोजन एंड गिविंग टू द प्लांट्स. सो एनेबेना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, हाँ, ये सब क्या है? दे आर एसोसिएटेड विथ लाइकेंस, व्हाइल एनेबेना इज एसोसिएटेड विथ प्लांट्स लाइक अजोला. एनेबेना एंड अजोला का कॉम्बिनेशन यू हैव हर्ड इन साइकस प्लांट. यस, दे आर अगेन डूइंग द नाइट्रोजन फिक्सिंग टू द प्लांट.
वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, किसी को कुछ डाउट है बेटा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आस्क मी. एंड द नेक्स्ट इज द फंगल वन, फंगल बायोफर्टिलाइजर्स. सो फंगल बायोफर्टिलाइजर में एक ही नाम आता है, माइकोरिजा. माइकोरिजा के भी दो टाइप्स होते हैं, एक्टोमाइकोरिजा एंड एंडोमाइकोरिजा. एक्टो मतलब जो बाहर रहता है, एंडो मतलब जो अंदर ग्रो करता है. ठीक है. नाउ एक्टोमाइकोरिजा का मेन फंक्शन क्या है? दे आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द रूट. यस, आउटसाइड द रूट प्रेजेंट है और सरफेस एरिया बढ़ाता है रूट का फॉर एब्जॉर्प्शन. इट एक्सेलरेट इनटेक अपटेक ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. एंड देयरफॉर द हाइफे, ये फंगस जो है, it can penetrate into root also and they can form a hartignate in the intercellular space of the root cortex. Endomycorrhiza, endo means within the cortical cell of root. Yes, they are again finely branched. ये हाइफे जो है, हमेशा फंगस में हाइफे होते हैं. they finely branched to form the arbuscles and vesicles. ठीक है, I will show you the photo. And therefore they are called as a vesiculo. Yes, arbuscular mycorrhiza, vamp बोलते हैं जिसको हम commonly. ठीक है. Again this is also helping the plant. ठीक है, which is a biofertilizer. You can see the photo now. The first photo is a root nodule. This is Azolla root nodule. Again you can see about this Anabaena and nostoc. Root nodule, how it is going inside, TS of root nodule, and this is a LS of Azolla leaf showing the filamentous Anabaena. You can see here filamentous Anabaena over here. Yes. So rhizobium are the nitrogen fixing bacteria which contains the nod gene and the NIF gene. This is again very important. Nitrogen fixing bacteria contain nod gene and NIF gene. हाँ, इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तभी आपको समझना है, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि ये जो राइबोसोबियम है, यस, ये राइजोबियम रूट नोड्यूल बनाता कैसे है. तो जो भी बैक्टीरियाज होते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, वो लोग रूट नोड्यूल बना कैसे पाते हैं? तो उनके पास एक स्पेशल टाइप का जीन होता है कॉल्ड एज अ नॉट जीन एंड निफ जीन, और ये जीन के कारण ही वो लोग ये रूट नोड्यूल्स बना पाते हैं इन द लेग्यूमिनस प्लांट. And what they do, they are fixing the nitrogen, है ना, they are fixing the nitrogen. So हम पी प्लांट में अलग देख सकते हैं, बीन के प्लांट में आ सकते थे, दोनों भी प्रोटीन वाले प्लांट हैं. तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम इन पी प्लांट एंड राइजोबियम फैसियोली इन बीन प्लांट. वैसे ही अगर हम एजिटोबैक्टर की बात करेंगे तो एजिटोबैक्टर तो फ्री लिविंग वाला है, राइजोबियम क्या है? सिम्बायोटिक है. यस, सिम्बायोटिक है मतलब उसको भी मदद मिल रहा है और वो भी मदद कर रहा है, पर एजिटोबैक्टर क्या है? फ्री लिविंग वाला है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एरोबिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग है. कैसे ये प्रूव होता है कि नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग है? देखो, है ना, आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो नोड्यूल नहीं बना रहा है. यस. Now, it is used as a biofertilizer for all leguminous plant like rice, cotton, vegetables, etc. And this photos. Next is the Azospirillum. Again, it's a free living aerobic nitrogen fixing. ये सारे हम जो पढ़ रहे हैं सब नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले हैं. ठीक है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला है. ये कौन से प्लांट में हम यूज करते हैं? कॉर्न के, व्हीट के एंड जवार के प्लांट में. अगेन टू फिक्स द नाइट्रोजन, which is a non-leguminous plant. We know that ये सब non-leguminous plant है ना, जो cereal plants होते हैं वो leguminous होते हैं. Yes, तो non-leguminous plants में भी ये use होता है, जैसे कि such as cereals, millets, cotton and oil seeds also. Anabaena, ठीक है. Again Anabaena is fixing the nitrogen. It is having symbiotic association. किसके साथ होता है ये? Anabaena किसके साथ associated रहता है? You can see over here. Anabaena किसके साथ associated? You can see it is not forming the root nodule. ठीक है,
It is seen in the roots of cycas plant. Anthocerus thallus में पाया जाता है. It is forming a heterocyst. cyst बना रहा है, देखो, है ना, अनइवन सिस्ट बनाया है इसने, कैविटी बनाया है और उसके अंदर वो रहता है आराम से. एजोला, अगेन इट्स अ फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न है. ये फर्न है, मतलब इट्स अ टेरिडोफाइट. ठीक है. सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोटिंग राइजोम्स. हाँ, यू कैन सी ओवर हियर एजोला का फोटो. हाँ, यस, सी हियर दे आर हैविंग अ फ्लोटिंग वन. They show dorsal and ventral lobes also. Again, they are being used as a biofertilizers. ठीक है. Again, biofertilizer का importance क्या है? biofertilizer का एक तो low cost है, pollution free है, soil की fertility बढ़ती है. Yes, ये जो BGA हैं fertilizers, they are rich in promoting the organic acids, protein and vitamin formation. Azotobacters provides nitrogen and antibiotics in the soil. Yes, biofertilizers increase the physiochemical properties of soil, and therefore in our country many biofertilizers are available in market to reduce the chemical fertilizers and thus the pollution. Is that very clear to all of you? Just have a look, alag type ke, what are the things we have learned today. The last topic which we have learned was about the biofertilizers. Biofertilizers में आपने क्या क्या पढ़ा बेटा? Rhizobium, Azotobacter, you have learned about the Azospirillum, Annabena, Azolla. 5 पढ़ा आपने, biofertilizers पढ़ा. ठीक है. Then next, in the biofertilizers में आपने again nitrogen fixing वाले तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाए थे, और फॉस्फेट फिक्सिंग वाले बताया. कंपोस्ट बनाने के लिए भी बायोफर्टिलाइजर यूज सकते हैं. साइनोबैक्टीरिया इज अ ब्लू ग्रीन एल्गे एंड अ फंगल में एक्टो एंड एंडो. एंडो वाले को हम वैम्प बोलते हैं. इज दैट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? सी दिस इज द mycorrhiza the photo. These are the cyanobacteria. Have a look. Annabena, nostoc and the Oscillatoria. So cyanobacteria are autotrophic microbes which are present in aquatic and terrestrial habitats. They fix the atmospheric nitrogen and increase the soil ka fertility. Very clear beta? Yes or no? हाँ ना तो बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So with that, I think so this lesson is also been completed. Homework for you all is to draw the diagrams. ठीक है. अभी diagrams में क्या क्या है? So diagrams में आता है पेज नंबर 263 का वो टेबल. हाँ, सीवेज वाला टेबल. हाँ, लिख लो आप लोग. 263 पेज नंबर पे वो सीवेज वाला डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाला टेबल. बायोगैस प्लांट का डायग्राम 264 पेज नंबर पे. 264 पेज नंबर. Then you are going to write down about the anaerobic digestion of biogas. वो 3 स्टेप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. हाइड्रोलाइसिस, एसिडोजेनेसिस एंड मिथानोजेनेसिस. सी मैं अभी आपको होमवर्क ज्यादा दे रही हूँ बिकॉज आपका लेक्चर तो अभी नेक्स्ट वेडनेसडे को ही रहने वाला है. तो यू आर गोइंग टू गेट अ टाइम. यस, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ microbial pesticides. You are going to write down for biofertilizers in detail. ठीक है. बस biofertilizers लिखोगे और biopesticides के बारे में लिखोगे. I hope I am very much clear with the homework. सबको समझ में आ गया है. And the